As you know, in the UPA government, we had a separate ministry for NRIs. और मैंने एक उनके अंदर राजनीतिक इंसान कम और संत ज्यादा देखा है। आज टाइम है उन 10 सालों का हिसाब हम मांगेंगे, मैं और आप सब मिलके। लेकिन सभी इधर का लोग को मालूम नहीं होगा कि हमारा NRIs भी इधर आके काम कर रहे हैं। जो हम लोग रहते हैं विदेशों में, जितने लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह इधर होती है, उसकी प्रॉपर्टी की रखवाली की जाए। Namaskar to all of you who are on the stage and to all the press members, the media people. I'm Aarti Krishna, Overseas Indian Congress Secretary for AACC. I would like to mention that Indian Overseas Congress has its presence in 32 countries of the world. 32 countries में हमारा ज़्यादा countries से भी लोग इधर आके campaign कर रहे हैं ground में। We have more than 4,000 people campaigning in different parts of the state, in the village or state that they come from. This time, we made it clear that they should campaign in the areas that they come from, because that is where their strength comes from. You know, they have friends and families there. So we have a lot of people working on the ground in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, where election is almost getting over. Telangana and Andhra Pradesh is on May 13th, so we have a lot of them working there. And now they have shifted to the north because we have finished our election there. So some of them who are from that area are also working in the other states where elections are going to happen now in the next phases. So we also have people from UP and Bihar and Madhya Pradesh, Rajasthan are also working in their areas where they come from. So Indian Overseas Congress, the NRIs are also very excited to come and work in this present election because, as you know, in the UPA government, we had a separate ministry for NRIs. We had an Overseas Indian Affairs ministry for 10 years, and after the BJP came, it got merged back with the External Affairs Ministry. So now we don't have a separate ministry. So in our Congress manifesto, we not only included guarantees, 25 guarantees are announced to help in different sections of the society, but they also have concerns for NRIs and their welfare. Keeping that in mind, they have also announced that we will have a separate minister for NRIs if Congress comes to power in the center. I come from Karnataka. In Karnataka also, and we had an assembly election just a few months back. So even in Karnataka, for example, Congress government had a separate cell for NRIs to take care of welfare of NRIs, but for 5 years after that, there was nobody in that place. So I was not in charge of NRIs officially, but still I helped during Corona, Ukraine crisis, Sudan crisis, not just Karnataka, but NRIs from all over India. So, but after Congress came to power, we had mentioned in our manifesto that we will have a separate ministry for NRIs in the state of Karnataka. So they have taken the first step of appointing me again as the deputy chairman in the cabinet rank for NRIs. So we will be starting a new ministry in that state as well. So in UP, we have a lot of NRIs who are in the Gulf countries. We have a lot of workers. They are all interested in coming in, मेरा नाम महेंद्र सिंह गिल जी है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस USA। तो अराउंड 5 महीने पहले हम अपने देश को आए थे। 1 साल पहले हमने शुरू करा था USA में भारत जोड़ो यात्रा अंडर लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हमारे पास गए थे 6 दिन के लिए, 30 मई से लेकर 4 जून तक। ही स्टार्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया से शुरू हुए, 2 दिन कैलिफोर्निया में, 2 दिन वाशिंगटन DC में और 2 दिन न्यूयॉर्क में। वो 6 दिन थे हमारे लिए बहुत लकी थे। हमने बहुत नज़दीक से अपने फ्यूचर लीडर को देखा, बहुत नज़दीक से। 6 दिन हम उनके साथ रहे एज ए प्रेसिडेंट। 6 दिन हमने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, 6 दिन लंच किया और 6 दिन डिनर किया। और मैंने एक उनके अंदर राजनीतिक इंसान कम और संत ज़्यादा देखा है। वो मेरे को लगा है वो संत स्वरूप है। आज की 21वीं सदी के जो राजनीति है उसमें वो निकला इंसान है। तो मैं पिछले 31 सालों से अमेरिका रह रहा हूँ। तो जब उनको मिला, उनके साथ 6 दिन बताए, तो मैंने भी अपना मन बदला और मैं अपने देश की सेवा करने का मन बनाया। और मैं राज जी को बोला कि मैं भी आपके साथ अब इंडिया में सेवा करूँगा। तो उसी पड़ाव के नीचे मैं पिछले 5 महीनों से 12 दिसंबर को मैं इंडिया आया था। मैं देश के हर कोने में गया हूँ।
राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे और पूरे देश का माहौल देखा है। तो जो इलेक्शन कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी, 3 पड़ाव हो चुके हैं, 3 फेज हो चुके हैं, 4 फेज बाकी है। तो उसके पड़ाव के नीचे हम लखनऊ आए हैं आपके पास। लखनऊ वासियों को बेनती करने आए हैं, यूपी वासियों को बेनती करने आए हैं कि आज जो 10 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चीफ मिनिस्टर के रूप से बाद प्रधानमंत्री के रूप से दिल्ली आए, वो 10 साल उन्होंने सेवा की देश की। मैं उनका पर्सनली बहुत सत्कार करता हूँ, पर आज टाइम है उन 10 सालों का हिसाब हम मांगेंगे, मैं और आप सब मिलके भारतवासी। हम उनसे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। वो हमारा ध्यान, हमारे देशवासियों का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हम उनको मुद्दों पे लाना चाहते हैं। 2014 की इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें मोटे मोटे मैं आपको गिना देता हूँ कि मैं सबसे पहले उन्होंने बोला था कि मैं काला धन वापस लेके आऊंगा। कोई काला धन वापस आया? दूसरा उन्होंने बड़ी बात करी थी कि मैं 2 करोड़ नौकरी 1 साल में दूंगा। 2 करोड़ नौकरी 1 साल में, तो 10 साल बड़े 20 करोड़ नौकरी बनती है। तो हम तुम्हारे मीडियम से पूछते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ नौकरी दी 10 साल में। अभी कल परसों की बात है, मैं ज्यादा टीवी चैनल देखता नहीं हूँ, तो मेरे मित्र ने मेरे को एक क्लिप भेजी। तो अमित शाह बोल रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, कि ये वाली इलेक्शन है, मौजूदा इलेक्शन है, ये मोदी वर्सेस राहुल है। मोदी वर्सेस राहुल है। अमित शाह, मैं नहीं बोल रहा, हमारे देश का होम मिनिस्टर बोल रहा था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो उसका जवाब जो हमारे लीडर ने दिया, राहुल जी ने, कि ये मोदी वर्सेस राहुल है, तो फिर डिबेट कर लेते हैं। देश के मुद्दे क्या है? तो क्या हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तैयार है डिबेट करने के लिए? देश के मुद्दों पे बहस करने को तैयार है? 10 सालों में, पिछले 10 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितने बार मीडिया में आके देश के मुद्दों का जवाब दिया? देश के लोगों के मन की बात सुनी? पिछले 10 साल कितने बार बात सुनी? हमारा सवाल बीजेपी और बीजेपी के जो बड़े लीडर होते हैं 10 सालों में कितनी बार हमारे देश के लोगों की मन की बात सुनी? पिछले 10 सालों में कितने सरकारी इदारे बेचे? जो कांग्रेस ने 55 साल में 55 ईयर में बनाए थे, वो कितने इदारे बेचे? एयरपोर्ट, रेलवे और कितने बेचे? उनका मकसद क्या था? वो इदारों को, सरकारी इदारे जो बड़ी मेहनत करके हमारी पुरानी सरकार ने बनाए थे, उनको बेचने का कारण क्या था? तो उसका एक मोटा रीजन बता देता हूँ। उसके पीछे राजनीति क्या थी कि रिजर्वेशन जो हमारे दलित पिछड़े जो उनकी रिजर्वेशन भरी हुई थी, उनको खत्म करना है। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, डरते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके जो साथी हैं डरते हैं कि डायरेक्टली रिजर्वेशन नहीं खत्म कर सकते, और उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा, इनडायरेक्टली वो हमारे जो हमारे भाई है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है और आदिवासी है, उनके अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने कोशिश की और कर रहे हैं। हमारे मौजूदा सरकार, इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी मौजूदा सरकार किसान विरोधी, जवान विरोधी और महिला विरोधी, जिनकी मिसाल मैं तीनों की अलग-अलग दूंगा। काले कानून बनाए, बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, 700 किसान मारे गए नॉर्थन इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान। काले कानून वापस लिए गए और हमारे किसान भाइयों से धोखा किया गया। एक्चुअली वापस नहीं लिए, ड्रामा कर दिया, वही कानून हुआ खड़े हैं। और फिर दोबारा किसान देश की सरहदों सब जगहों से आके दिल्ली जाना चाहते, सारे स्टेट बॉर्डर बंद कर दिए और वैसा बर्ताव उनके किया जैसे वो किसी दूसरे कंट्री के नागरिक हो। जवान जो देश की रीढ़ का हड्डी है, जो हमारी देशों की सरहदों की रखवाली करते हैं, उनकी नई योजना शुरू करी, 4 साल की नौकरी। 4 साल की नौकरी अग्निवीर, 4 साल जाएगा, 20 साल का 19 साल का लड़का 4 साल जाएगा नौकरी में, रिटायर होकर 23 साल का रहेगा था,
आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, ये देश के नौजवानों का भविष्य पूरे खतरे में डाल दिया। महिला विरोधी, जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बोलते हैं सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। पिछली 2 मोटी मोटी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, देश की जो नई पार्लियामेंट बनी है हमारे टैक्स से अरबों खरबों रुपए लगा के बनी, तो जब उसका उद्घाटन किया तो हमारे देश की जो प्रथम महिला है, हमारे देश की प्रेसिडेंट, आप सब जानते हो, वो शी बिलोंग टू आदिवासी, उसको वोट पाने बुलाया गया। जब पार्लियामेंट की ओपनिंग करेगी उस पर नहीं बुलाया गया। जब राम मंदिर जी का स्टार्टिंग की गई तब भी उनको नहीं बुलाया। तो इट मीन दे आर महिला विरोधी, दे आर किसान विरोधी, दे आर जवान विरोधी। पिछले 10 साल में, आप मीडिया वाले बैठे हैं मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो अमेरिका रहता हूँ, कितनी सरकारों को गिराया। उसमें मैं मोटी मोटी मिसाल देता हूँ, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोटे मोटे 2 राज्य, लोगों की वोटों से बनी है दोनों सरकार, लोगों की वोटों से बनी हुई 2 बड़ी सरकारें, जो 2 पॉपुलर स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के। बाकी तो और बिक्री की स्टेट है, छोटी छोटी स्टेट तो बहुत करी, पर मेजर 2 एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने पिछले कुछ सालों में। महाराष्ट्र और लोगों की दुनिया, हमारे हिंदुस्तान के लोगों, मेरे भारत के लोगों ने अपनी वोटों, जो वोट का अधिकार है उससे अवेलेबल आए, सरकार बनी और गिरा दी। आप कह रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए आप कई जगह से आए हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी ये है कि आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है? या राहुल जी ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुद्दा ये है कि हम अलायंस में कैसे जीतेंगे, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। जब वक्त आएगा वो भी पता चल जाएगा आपको। हेलो भैया, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मैं जवाब दूँ उसका। प्रधानमंत्री 543 मेंबर पार्लियामेंट, 543 मेंबर पार्लियामेंट, इंडिया के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोग 543 मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, जिसको 272 लोग, 272 MP चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश के लोग, मेरे हिंदुस्तान के लोग फैसला करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। मैं नहीं। आपने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आपका समर्थन, आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खतरे में है, और कैसे ये लग रहा है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण सरकार समाप्त कर रही है? आपके सामने बोला तो है कि जितने सरकारी इदारे बेचे हैं उसमें रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होती थी, जो कोटा होता था उसी हिसाब से इलेक्शन में वही नौकरी मिलती थी। जो सरकारी इदारे ले दिए तो रिजर्वेशन। डेमोक्रेसी है और अमेरिका सबसे पुराना है ना? ये इंडिया है ना, ये प्रकाश है। क्षमा कीजिएगा, ये हम पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। डेमोक्रेसी कौन सी नई है, कौन सी पुरानी, सब पढ़ते हैं। और मेरा सवाल उसी आपके मैनिफेस्टो से जुड़ा है। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर अगर सरकार में आई तो पूरे देश में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देगी। क्या माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देगी? तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल को अपनाकर पूरे देश में कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देगी। क्या ये मॉडल आपके लिए, आपके हिसाब से सही है? और ये इसलिए भी सही नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का इजाजत तो देता नहीं है। कौन से पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? मैं कर्नाटक और तेलंगाना के मॉडल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 2 स्टेट में वो रिजर्वेशन ले रहे हैं। मैनिफेस्टो पढ़ा है, इधर ही है हमारे पास, इधर ही है। अरे सर, उसमें उनके आप सवाल जवाब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब कर रहे हैं क्या? लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं? आप लड़ना चाहते हैं क्या? क्वेश्चन ही गलत है। मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है। आप उसका आंसर नहीं देना है ना, दीजिए। इसमें क्वेश्चन तो क्या ये पूरे इंडिया में कंटिन्यू? एक ये प्रश्नोत्तरी का आपने जनसभा तो बुलाई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बिल्कुल पीछे 1 घंटे से आप ही बोले चले जा रहे हैं, सब बेवकूफ नहीं बैठे। एक चीज अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड कोई बोलेगा नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना से संजीव श्रीवास्तव हूँ, ठीक है, मेरा परिचय जान लें आप। दूसरी चीज, अभी आपने कहा
फ्रीडम की बात आप कर रहे हो ना, अभी आप सत्ता में आए नहीं, अभी से बोलने शुरू हो गई, ये कौन सा तरीका है? ये गेट टुगेदर है? ओके, एक मिनट। अभी आपने कहा कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। दूसरी बात आपने कही है कि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री देता है। दोनों बातें कही आपने, ठीक? एक मिनट, अब आप हमको ये बताइए कि चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण चलने जा रहा है, चुनाव बिल्कुल निकटतम है। आप लोग NRI हैं, विदेशों में रहते हैं, आपको व्यवहारिक रूप से भारतीय स्थिति की कितनी दशा, कितने % आप भारतीयों से जुड़े हैं, कृपया आप इतना बता दीजिए अपने। मैं आंसर और लखनऊ वाले आपको कैसे दिखते हैं? देखिए सर एक प्रश्न, आप इस पे सीधी बात करिए। देखिए ये डिबेट नहीं है। कैसे दिखते हैं? आपकी तो ससुर अच्छे दिखते हो। एक तो आप लोगों ने भी 70 साल शासन किया है देश पे, ये वही देश है, ये विदेशी नहीं शासन कर रहे हैं, ये उसी देश के नेता हैं, उसी देश के सांसद हैं, उसी देश के विधायक हैं, उसी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने 70 साल, अभी आपने कहा राइट ऑफ, आपने इंफॉर्मेशन बनाया, आपने बनाया हुआ कानून और उसका फायदा सामने वाले ने उठाया, आपने इस पे कभी समीक्षा की? क्यों हुआ ऐसा? कभी आपने इस पे कभी डिबेट किया? कभी आप पब्लिक में गए, पब्लिक की बात कही? अब इलेक्शन आया है, 8 दिन इलेक्शन हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सीधे प्रधानमंत्री को डालेंगे, ये भारतीय संविधान की परंपरा तो नहीं है। यहाँ तो हर आदमी को बोलने का अधिकार भारतीय संविधान ही देता है, क्या आप लोग किसी दूसरे संविधान से चलते हैं? विदेशों में हो सकता बहुत अच्छा हिसाब किताब, लेकिन आप इसलिए वहाँ माने जाते हैं जो हिंदुस्तानी है। आप एक काम करिए, तो अब प्लीज एक बात कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा, नहीं तो ये डिबेट बहुत आगे जाएगी, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। थैंक यू। हमारा ओवरसीज कांग्रेस कमेटी का मेंबर्स सारे देश से इंडिया आके ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी इधर का लोग को मालूम नहीं होगा कि हमारा NRIs भी इधर आके काम कर रहे हैं। तो मैं पहली बार कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा था इस टाइम लोकसभा का, मैंने सोचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सब स्टेट में, तो उस स्टेट का लोग को मालूम होता है कि उधर का NRIs कितना इंटरेस्ट लेके इधर आके काम कर रहे हैं और कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटर्स को। तो इसीलिए हम कर्नाटका में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला में भी किया। इसीलिए हम लखनऊ में भी, इतना बड़ा स्टेट है, इधर का भी लोग बहुत सारा दुबई गल्फ कंट्रीज़ में है, हम इधर भी थोड़ा IOC के बारे में और NRIs इधर कैसा काम कर रहे हैं और हमारा गवर्नमेंट NRIs को क्या क्या दिया था और क्या देना चाहता है, नेक्स्ट कांग्रेस आएगा तो वो सब बोलना चाहते थे मीडिया के थ्रू। भाजपा लगातार कह रही है अपनी बात 400 तो 400 हार सुनते हैं भाई, ना 400 पार ना 400 हार 400 हार रही है, 400 पार में 400 लूज कर रही है। ये गारंटी लिख लो, 400 उनको थोड़ा गलती लग गया। अब वो शुरुआत में मोदी जी ने कहा था ना 400 पार ना आज की डेट में 400 हार 420। रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस बार कितनी सीटों से है? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। आप नोट कर लो आज की तारीख, सरदार जी ने बोला है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा- मुद्दा है आज जो पत्रकारों को दबाया जाता है, व्यापारता की जाती है, उन मुद्दों को कितना सीरियस नहीं लिया सरकार? किसने नहीं लिया सीरियस? नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है आज जो पत्रकारों के साथ होता हत्याएं हो जाती हैं, फर्जी मुकदमे लिख जाते हैं या तरह तरह की उनकी परेशानियां हैं, फ्री इलाज है, जैसे उनका बीमा होना चाहिए 5 करोड़ का जैसे मांग होती है, उसको लेकर कितना सीरियस नहीं पत्रकारों के हित के लिए? नहीं, वो तो हम लोग के मैनिफेस्टो में लिखा कि हम पत्रकार हो जाए, किसान हो जाए, कोई भी हो जाए। सरकार हाँ, सरकार बना तो आप लोग सरकार बनेगी हमारी तो पत्रकार को सबसे पहले रखेंगे, ये गारंटी है, मेरी गारंटी है। सरकार बनेगी, पत्रकार को जितनी मांगे सब नहीं, पूरी हमारा करेंगे। मैनिफेस्टो में सब लिखा हुआ है। 30 मांगे हैं पत्रकारों की। सारी मांगे पूरी करेंगे। आप एक काम करिए, जो मांगे है ना, जो मांगे हैं, मेरा नंबर रख लो, एक मिनट, ये कैबिनेट मैं खुद राहुल जी को बोलूंगा NRI की जितनी है है मांगे जो कोई इंडिया की। आपके लिस्ट में नहीं आई मैं उसको पूरी रिक्वेस्ट करेंगे। सुनिए, आप मैडम को आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, हमारा सरकार आएगा तो आप सबसे ज्यादा देश को प्यार करते हो, आप सभी लोगों की दिल की बात लोगों को क्या सोचते हो आप लेके जाते हो, सबसे रिस्की काम आप कर रहे हो। नहीं, आपके पास में 30 खुले मंच पे एक बार अमित शाह ने कहा था आरक्षण खत्म करने के लिए दिल्ली क्या करना चाहिए? क्या चीज के लिए? जो वायरल हुई थी अमित शाह की आरक्षण देखिए, इंडिया अलायंस है ना, और एक बार उसका प्रधानमंत्री सरकार बनेगा, उसको लेकर जरूर बनेगा। विंस्टन चर्चिल है ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 वॉर के बाद उसने कहा विदाउट अलायंस है ना, विदाउट अलायंस वो लड़ना बहुत मुश्किल है। ये हमने नहीं कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा है।
हम तो अलायंस है, इंडिया और इंडिया अलायंस, तो साथ में ये वार है ना, साथ मिलकर कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है? ऐसा का एक क्वेश्चन और भी है, जैसे आपने कहा भाजपा के दावे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ यूरो मतलब रोजगार देंगे, साल का, हाँ। तो आपके दावे क्या आगे सरकार बनेगी? हमारा तो 30 लाख का लिखा ही है, पहले 30 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो लिखा ही है। बाकी जो अलायंस जो स्टेट में होगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपना करेगी। बेरोजगारी है, जैसे अभी आपने कहा था कि मतलब सब कुछ बेच दिया है। ये देखिए, ये अभी बचा कुछ सारा नहीं बचा। ये आप एक काम करिए थे कि मतलब इतना जो है सरकार के ऊपर मतलब जैसे 1,95,000 मतलब का कर्जा हो गया, कुछ भी सरकार। ये देखिए, एक मिनट, आप बड़े देखो, जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को लीडरशिप छोड़ी थी 2014 में कितने नंबर थे, आज नंबर निकाल लो। सरकार में 55,000 का कर्जा था, अब कितना है? अभी में 2,05,000 है। और सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे ना 70 साल में 55 लाख करोड़ हुआ, तो अभी 10 साल में कितना हुआ? आप मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो ना, 23 करोड़ जनता। हम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका गए थे, तो उसी पड़ाव में हम अपने सभी साथियों को अपील कर रहे हैं, देश को, हमारे देशवासियों को नई जनरेशन, नए प्रधानमंत्री की जरूरत है, तो बदलाव के लिए वोट डालो, इंडिया अलायंस को वोट डालो, ये बेनती लेके आए हैं। और आपके थ्रू बेनती करते हैं पूरे देशवासियों को, खास करके यूपी वासियों को बेनती करते हैं, अगला प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के बनाइएगा। आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आपका सवाल है। आप 21वीं सदी में जाना चाहते हो या 18वीं सदी में बैक जाना चाहते हो? आपकी वोट डिसाइड करेगी, यूपी के वोट, लोगों की वोट डिसाइड करेगी। आपके बच्चे अमेरिकन स्टाइल रहना चाहते हैं, कनाडा स्टाइल रहना चाहते हैं, जहाँ पीछे 18वीं सदी में लेना चाहते हैं, आप लोग डिसाइड करोगे। हमारे जितने मुद्दे थे ना एनआरए के, सब लिख के दे दिए कमेटी को, तो उसमें मैनिफेस्टो में डाल दिए कि हमारी मोस्टली मुद्दे होते हैं कि जब जो हम लोग रहते हैं विदेशों में, जितने लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह इधर होती है, उसकी प्रॉपर्टी की रखवाली की जाए। वो मोस्टली वो सारे मुद्दे उस मैनिफेस्टो में डाल दिए हैं। नहीं, मेरे सवाल ये है कि मैं प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री को पूछता हूँ कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो वादे करे थे सरकार आने से पहले, 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं, 15 लाख रुपये जो काला धन है सभी को बांट दूंगा, उसमें कोई ये काम करके दिखा दे, हमको हिंदुस्तान की जनता को दिखाए कोई मैंने 10 सालों में ये किया। अभी ध्यान भटका रहा है, मुद्दों की बात नहीं करता। मैं कितनी 2 करोड़ मीन 10 साल में 20 करोड़ नौकरी बनती है, तो कितनी दी नौकरी, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं गया ही 400 को, जब हम मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 400 का सिलेंडर था, अभी 1200 से करीब बिक रहा है, अभी 100 सस्ता किया, फिर 200 किया। पहले लूट लिया हमको लूटा, तभी थोड़ा सा वो दान दे रहा है वापस। यही हमारे सवाल है कि सच बोलो, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को सच बोलना चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।